What are the different things you can see at your home which you got from plants or trees? So definitely you would say that you have a furniture, dyeing powder, mats, and many more items are made of wood or furniture you can see at your home. So when you visit somewhere or you visit a forest, you see different trees, and according to the trees, we have their values, and we decide their values. So some forests are valuable uh, economically, and some are less valuable economically. So because we can find out different kinds of tree in that particular location, and their values are different according to their use or commercial use. So today we are going to discuss a new chapter. It's a chapter number 4, and name of this chapter is the wonder of nature. The wonder of nature, and it is adapted from Jungle Lore of Jim Corbett, and this book was written by Jim Corbett, and he was born in 1857 in India, and he was not only born in India but he also lived here for many years. He worked for British Indian Army, and he wrote many books about his hunt in the Kumaon region. As you know that this story is adopted from Jim Corbett's book Jungle Lore, and the author described that if you want to see the foothills and forests, then you should go to the top of the hill. He started his journey of the forest from a canal, and he described the forest which was in original condition because there were little timber of a commercial value. So nobody took interest in that forest just because of less commercial value. Author said that the sapling of shisham are theirs, and their seed were washed down from the foothills by monsoon flood. And these sapling provides a best timber for cartwheel and furniture when grow to maturity. जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये कहानी जो है जिम कॉर्बेट की जंगल लोर बुक से ली गई है, और इसमें जो है ऑथर कहता है कि लेखक कहता है कि यदि आपको पहाड़ियों के नीचे घाटियों की और जंगलों की, जो उसके नीचे जंगल होते हैं पहाड़ों के नीचे, उनका अच्छा लुक देखना हो तो आपको पहाड़ के ऊपर चले जाना चाहिए। तो इन्होंने जो है एक जंगल की अपनी यात्रा स्टार्ट करी थी, और वहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ देखे थे। तो इस जंगल के बारे में उन्होंने कहा कि ये जंगल जो था काफ़ी अच्छी कंडीशन में था और ओरिजिनल कंडीशन में था, क्योंकि यहाँ पर जो है लोग पेड़ों को काटने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि इस जंगल में जो लकड़ियाँ मौजूद थी उनकी कॉमर्शियल वैल्यू, यानी कि कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए जो वैल्यू होती है, जैसे कि टिम्बर के लिए जो ज़रूरत होती है, तो उसकी अकॉर्डिंग जो है इसकी वैल्यू काफ़ी कम थी। तो इसलिए ये जंगल जो है ओरिजिनल कंडीशन में था। और ऑथर ने कहा था कि शीशम के जो पौधे होते हैं वो इस एरिया से जो है फुटहिल से जो है मानसून के ड्यूरेशन में जो है बह करके चले जाते हैं। इसके जो सीड्स होती हैं वो बह करके चले जाते हैं। तो इसके जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो आगे जा करके जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो फर्नीचर के रूप में, या वुडन जो है कार्ट व्हील, यानी कि जो कार्ट में जो व्हील लगाते हैं, यानी कि जो जैसे बैलगाड़ी वगैरह होती है उनके व्हील, क्योंकि उस समय पर जब ऑथर ने ये लिखा था उस समय पर काफ़ी चलते थे कार्ट वगैरह, तो उन सभी में ये इस लकड़ी को यूज़ किया था। शीशम की जो है लकड़ी यूज़ की जाती थी जो फर्नीचर के लिए बेस्ट थी। सो ऑथर ने अपना यही एक्सपीरियंस शेयर किया शीशम के बारे में कि जो है इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता था। Runi trees provide the powder known to commerce as kamla. Poor people migrate from the hills to foothills in search of warmth and food in winter season. They collect kamla from the jungle, and this red powder is stick to the red runi berries. For cutting berries, the branches are for getting berries, branches are cut down. Berries are collected in a big solo basket. Berries are hand rubbed against the side of the basket. The powder, when freed from the berries, drift through the crack in the basket, and it caught on cheetal or deer's skin or and a square of cloth.
A family of five member work from sunrise to sunset when the crop is plentiful. Collect only 4 pounds powder worth of rupees 1 to 2 according to the market price or market value. In a whole day, they could collect only 4 pound, and its worth is about 1 to 2 rupees. This powder is used for dyeing wools in India and Middle East. Some dishonest man mix brick dust in it. The powder used in USA for coloring butter. The powder is also used for medicine purpose. Rooney berries are boiled with mustard oil to use in joint pain disease. रूनी वृक्ष से हमें एक पाउडर प्राप्त होता है जिसको वाणिज्यिक रूप से कमला कहा जाता है। जिस समय सर्दियां आरंभ होती हैं तो सर्दियों में लोग जो है पहाड़ों से नीचे की ओर चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं ताकि उन्हें कुछ भोजन प्राप्त हो सके। और सर्दियों में पहाड़ों पर अधिक ठंड होती है तो वो गर्मी के लिए भी नीचे पहाड़ों के नीचे यानी कि फुट हिल्स पे चले जाते हैं। वे जंगलों से कमाला का पाउडर कलेक्ट करते हैं जो इसके बीज फलों पर जो है बेरीज पर जो है चिपका हुआ होता है। वो लोग इसको प्राप्त करने के लिए इनकी बेरीज को जो पहले ब्रांचेस को काट देते हैं और ब्रांचेस से फिर इसकी जो बेरीज होती हैं उनको कलेक्ट करते हैं और उनको एक बास्केट में डाल देते हैं। ये बास्केट एक ऐसी बास्केट होती है जिसमें आसानी से जो है बारीक चीज़ें यानी कि अगर कुछ और चीज़ डाली जाए, पाउडर टाइप का कुछ डाला जाए, वो निकल जाए आसानी से। और बेरीज को फिर हाथ से जो है वहाँ जो बेरीज होती हैं उसके जो फल होते हैं उनको रगड़ा जाता है उस बास्केट पे और उसका पाउडर जो होता है उस बास्केट से छन करके या उससे रगड़ने से निकल करके अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है वो बेरीज से। और उसमें जो क्रैक्स मौजूद होते हैं बास्केट में, उस क्रैक्स से निकलता हुआ ये जो है नीचे गिरता है और नीचे इसको कलेक्ट कर लिया जाता है, या तो जो चीतल होता है या फिर डियर जो होता है हिरन, उसकी स्किन में या फिर एक कपड़े में इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। अगर इसको कलेक्ट करने के लिए एक फैमिली यानी कि 5 लोगों की फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे हैं, अगर वो 5 लोग लगते हैं मॉर्निंग टू सनसेट, एक फैमिली अगर उस पर लगती है तो वह पूरे दिन में यानी कि जिस समय पर पर्याप्त फल हैं इसके, उस समय पर भी पूरे दिन में वो केवल 4 पाउंड जो है पाउडर प्राप्त कर पाते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 1 से 2 रुपये है। मार्केट के अकॉर्डिंग जो है इसकी वैल्यू, यानी कि इनको मार्केट से सिर्फ इतनी ही वैल्यू प्राप्त हो सकती है। और इस पाउडर को जो है इंडिया और मिडिल ईस्ट में जो है कपड़ों को रंगने के लिए और ऊन को रंगने के लिए किया जाता है। और लेकिन कुछ बेईमान लोग क्या करते हैं, इसमें जो ब्रिक होती है यानी कि जो ईंट होती है उसका पाउडर, उसका चूरा मिला देते हैं। इस चूरे को जो है कई बार लोग चिली पाउडर या मिर्ची के पाउडर में भी मिला देते हैं। यूएसए में इसको बटर को जो है कलरफुल करने के लिए किया जाता था, बटर को कलर देने के लिए किया जाता था। और इस पाउडर का यूज़ जो है मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यानी कि मेडिसिन की तरह भी होता है। और रेमेडीज़ एक डिजीज़ है जिसमें जॉइंट पेन होते हैं, उसमें इसके बेरीज को जो है इसके जो फल होते हैं उनको मस्टर्ड यानी कि सरसों के तेल में जो है उबाला जाता है और फिर उसको जहाँ पर जॉइंट्स में पेन होता है उस जगह पर लगा दिया जाता है। Cat trees provide plowshare. It's a part of a plow. To the foothill villagers, it provide cottage industry to thousands of poor people in the United Province. In the 4 month of winter season, Kutch or Kachu is produced. Its dye is known as khaki, used for dyeing clothes and fishing net. Author believe that khaki dye was accidentally discovered by a man named Mirza. One day Mirza's handkerchief fell into pan on boiling Kutch. He sent it to washing or washerman, but stain was still there after washing, or washerman washed it twice, but stain was still there. Mirza put his best to remove the stain, but he could not remove it. At the end, Mirza realized that he had discovered a
fast dyeing. Its factory was opened in इज्जतनगर. इसके बाद लेखक ने जो है खैर के वृक्ष की बात कही है, और यह वृक्ष जो है प्लोजर यानी कि जो फाल हल्का फाल होता है, यानी कि जो मुख्य भाग होता है जिससे ज़मीन को खोदा जाता है, वो बनाया जाता है. जो फुटिल्स में विलेजर होते हैं वो इसी के प्रयोग से फाल बनाते हैं. और इसी लकड़ी का प्रयोग जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री में किया जाता है, जहाँ पर हज़ारों लोग काम करते हैं यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर. अर्थात अर्लियर जो है जो यूनाइटेड प्रोविंस शॉर्ट फॉर्म में जिसको यूपी कहा जाता है. और सर्दियों के जो है 4 महीने लोग कच्छ, और जिसको कत्था कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कैच्यू या कैच्यू कहा जाता है, इसको प्रोड्यूस करते हैं और इसका उत्पादन करते हैं. और ये मेनली जो है खाकी कलर के डाई करने में, और खाकी जो कपड़े होते हैं उनको कलर करने में, खाकी रंग देने में उनको हेल्प करता है. इससे खाकी रंग की डाई प्राप्त होती है. और इसे जो है कपड़ों के साथ साथ में जो है फिशिंग नेट को भी कलर किया जाता है. ऑथर जो है बिलीव करता है कि खाकी की जो डाई थी वो एक्सीडेंटली यानी कि किसी ऐसी दुर्घटनावश और अचानक से ही खोज ली गई थी. और इसकी खोज का श्रेय जो है उन्होंने एक मिर्ज़ा नाम के व्यक्ति को दिया, जो लेटा हुआ था और उसके पास में जो है कच्छ के जो पीसेस थे उनको बॉईल किया जा रहा था. गलती से उसकी जो हैंकी थी और हैंकरचीफ थी वो उस बॉइलिंग पैन में गिर गई, यानी कि उस बर्तन में गिर गई. उसने जब उस हैंकी को धोने के लिए वॉशरमैन को 2 बार दिया तो वह सक्सेसफुल नहीं हुआ और वापस उसके पास आया. मिर्जा ने भी अपना सभी प्रयास उसमें झोंक दिए, किंतु उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई. और फाइनली उसको लगा और उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने एक डाई की खोज कर ली. बाद में इस डाई से संबंधित एक फैक्ट्री का आरंभ हुआ और वह इज्जतनगर में आरंभ की गई. We can get different shades of green in the forest. Each tree has its own individual value, and in this group, first tree is dhak, which is also known as Batimonus sperma in scientific language. The tree which orange colored flower are dhak or plas, which provide a ruby colored gem used for dyeing silk of the finest quality. So that's the use of first one. And second, amalthas. Its scientific name is Cassia fistula. And this tree gives, or this plant gives a golden bloom of 4 feet long shower of golden bloom. 2 feet long cylindric speed pods of the tree contain a sweet jelly like substance which is used throughout Kumaon as laxatively. The tree with a big lilac colored flower are kachnar or bohemia, which is used to prepare exotic dish. पहले जो है लेखक ने शीशम, रूनी और खैर के बारे में बताया था. अब कुछ अन्य पौधों के बारे में वह बताता है, और उसमें सबसे पहले नंबर आता है ढाक का. ढाक का यहाँ पर बताया, जिसको प्लाश भी कहते हैं. और इस वृक्ष से जो है रूबी कलर के कुछ रूबी कलर का एक गम भी, मतलब एक गोंद टाइप का सब्सटेंस निकलता है, जो यूज़ किया जाता है अच्छी क्वालिटी के सिल्क को रंग देने के लिए, यानी कि कलर देने के लिए यूज़ किया जाता है. उसके अलावा भी एक वृक्ष की यहाँ पर बात की है जिसका नाम अमलतास है. और अमलतास का यूज़ जो है, इसमें काफ़ी लंबे लंबे फूल होते हैं और इसमें सीड पॉड्स भी होते हैं, यानी कि जिनसे बीज निकलता है इस ट्री में. और इसके अंदर कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो काफ़ी स्वीट होता है. और इसका प्रयोग जो है एक प्रकार की औषधि बनाने में किया जाता है. और उसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वह कचनार का है. और कचनार के जो वृक्ष है उसको यूज़ किया जाता है, और इसके जो
फूल हैं उनको यूज़ किया जाता है कुछ आकर्षक और अलग तरह की एक डिश बनाने के लिए. In this chapter, author has mentioned many trees. One of them is pink kusum tree, and its leaves are used for various purposes. And red simel, which is also known as silk cotton tree. The flower are loved by birds that suck nectar, and by parakeet and monkeys that eats the flesh of flowers. Deer and pig eat them when they fall on the ground. Simple flower give way to large woolly seed pods. When the hot winds blow in air in the month of April, those pods explode like anti-aircraft shell. The white cloud of silk cotton carries a seed and drift away in the wind to regenerate natural or nature's garden. Some seeds are carried by animals and birds. Some can float. Some have wings like a paper to make it possible to move from one place to another. And some seeds float in water and grow on the bank of a river. Coconut seeds float and carried ocean wave from one shore to another shore. लेखक ने यहाँ पर बहुत से पौधों वृक्षों का जो है जिक्र किया है. इसमें पिंक कुसुम पेड़ की बात की गई है, वृक्ष की बात की गई है, जिसकी पत्तियाँ जो हैं गुलाबी कलर की होती हैं और इन पत्तियों का प्रयोग भी कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है. और इसी प्रकार उन्होंने रेड सिमल की बात कही है, जिसको सिल्क कॉटन के नाम से भी जानते हैं. इसके जो फूल होते हैं उनके अंदर एक मिठास भरा सब्सटेंस होता है जिसको शहद भी कहा जाता है. और इसको पक्षी और मंकीज़ जो हैं यानी बंदर जो हैं वो काफ़ी पसंद करते हैं. वे इनके फूलों को खाते हैं और जो फूल नीचे गिर जाते हैं तो उनको डियर और पिग्स खाते हैं. सैमल के जो फ्लावर होते हैं उनमें जो है एक सीड पॉड होता है, यानी कि जहाँ पर सीड होते हैं उसके बीज होते हैं. वो एरिया जो है वुडी, ऐसा लगता है जैसे वुडन बना हो, यानी कि लकड़ी का बना हुआ हो. और जब अप्रैल की गर्म हवाएं चलती हैं तो उस समय पर ये एक धमाके के साथ जो है फट जाते हैं और इनका बीज जो है दूर दूर बिखर जाता है. इसमें जो है इसका जो क्लाउड यानी कि सिल्क कॉटन जो ये कैरी करते हैं अपने अंदर, ये बीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हवा में उड़ करके चले जाते हैं और नेचर को फिर से रीजनरेट करते हैं. यानी कि ये जो बीज होते हैं, नेचर ने बीजों को फैलने का भी एक तरीका दिया है. बीज कई बार जो है जानवरों से फैलते हैं, कई बार पक्षियों से फैलते हैं, कई बार वह जो है पानी में बह करके चले जाते हैं. जैसे शीशम के पेड़ की बात कही थी लेखक ने, उसी प्रकार से जो है कईयों में विंग्स भी होते हैं. विंग्स जो हम हवा में उड़ते हुए देखते हैं उनमें नीचे एक बीज होता है और ऊपर उसमें बारीक बारीक से रोए होते हैं और उसकी सहायता से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर चले जाते हैं. और इससे क्या होता है, पॉसिबल होता है उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना. यानी कि हमेशा यही ज़रूरी नहीं है कि उसको ह्यूमन या फिर एनिमल्स या बर्ड्स ही उसको एक जगह से दूसरी जगह फैलाएं. कभी कभार उनको नेचुरल वे में भी फैलने का मौका मिल जाता है, चाहे वो वाटर हो या फिर एयर हो. एयर के थ्रू भी वो फैल जाते हैं और वाटर के थ्रू भी फैल जाते हैं. जिस प्रकार कोकोनट का सीड जो होता है वो ओशन की वेव्स के साथ में एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है. इसी वजह से जो है समुद्री किनारों पर कोकोनट के पेड़ जो हैं या वृक्ष अधिक पाए जाते हैं. आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर वी कैन से दैट or we can learn that we use trees for the different purpose for getting food, for clothes, house or shelter, medicine, cloth, furniture and many more things. So trees are useful for us various way. So it's our duty, it's our prime duty to, and that we should give our contribution to the nature for maintaining its balance. Or we should help it in regenerating nature's garden. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.